time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. I've been on the ground until I finally found something that would turn it all around. Funny how it all looks so differently since I know that I'm on my way. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there. We can make it ours. If you want it, we say, say. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there. We can make it ours. If you want it, we're saying, say. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. I've been on the ground until I finally found something that would turn it all around. Funny how it all looks so differently since I know that I'm on my way. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make
change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. As we're looking back on yesterday, I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there. We can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us. When we're together, we can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. As we're looking back on yesterday, I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Let's move together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. See, come here. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us. When we're together, we can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. I've been on the ground until I finally found something that would turn it all around. Funny how it all looks so differently since I know that I'm on my way. Nothing's gonna stop us. When we're together, we can do just anything. Now's the time to अस्सलामुअलैकुम जी, आई होप यू ऑल आर फाइन और आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं. मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा इफ आई एम ऑडिबल और नॉट. सदफ असलम साहब, अगर आप मुझे कंफर्म कर दें दैट विल बी ग्रेट. बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू. जबरदस्ती, थैंक यू वेरी मच जी. एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम ऑल. जैसे कि आपको पता चला है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने थर्ड वीक में जून के एंटर हो चुके हुए हैं और इस वीक के अंदर जो हमारा फोकस होगा वो हमारी थर्ड वीक की ट्रेनिंग की तरफ होगा, जो कि है बी सोशल एंड शेयर. हम देखेंगे कि हम सोशल कैसे हो सकते हैं और साथ साथ शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को किस तरीके से मजीद आगे की तरफ लेके जा सकते हैं. जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है बी सोशल एंड शेयर. तो सोशल गुड इज व्हाट ब्रिंग पीस टू फैमिली एंड सोसाइटी. यानी कि सोशल काम ऐसे काम होते हैं जो कि आपको पीस आपकी फैमिली को और आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. सोशल वर्क वो होता है जहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं और आप उनकी बेटरमेंट पे काम कर रहे होते हैं या आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं. तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ हम देखेंगे कि ये काम किस तरीके से आपके बिजनेस को आगे की तरफ लेके जा सकता है.
और ओरिफ्लेम में बीइंग सोशल होना एक्चुअली क्या होता है जी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक नजर देख लेते हैं जी हमारा नेक्स्ट, हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है आज का, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे अगर आप देखते हैं आपको 3 ऑप्शन इस टाइम नजर आ रही है, शेयर, इनवाइट और एंगेज। ये वो एरियाज हैं जो कि आप समझ लें कि हमारे सोशल सेलिंग का प्रोसेस है। सोशल सेलिंग इज समथिंग जिसकी कोई लिमिट नहीं है आपके आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। आप डिफरेंट चैनल्स के जरिए जो उनसे वो एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो उनसी हैं वो भी सोशली अपने बिजनेस को अब एक्सपैंड कर रही हैं। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारी कंपनीज जिनकी कोई वेबसाइट भी नहीं होती, जिनका कोई ऑफिस भी नहीं होता, वो भी सोशली लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं और उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग सोशल बेसिकली। उसके अंदर हम देखेंगे कि ओरिफ्लेम में बीइंग सोशल क्या होता है जी, आगे चल के थोड़ी सी डिटेल को हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। एक सबसे पहले क्विक रिमाइंडर, हमारे पास एक एक्टिविटी चल रही है जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों को कि आप कोई भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं विद इन योर टीम, या आपकी टीम में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि ट्रेनिंग से रेलेवेंट है, वो किसी भी टाइप की है, इट कैन बी अ टीम मीटिंग, इट कैन बी वन ऑन वन मीटिंग्स, आप बाहर कहीं प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो तो कमाल एक जबरदस्त किस्म की चीज हो जाएगी। इसके अलावा भी आपका कोई ब्यूटी डेमो है, बेशक ऑनलाइन कोई इवेंट है, आप उसकी फोटोज या उसके स्क्रीनशॉट गैदर करके आप इस लिंक के ऊपर जो कि यहाँ पे मेंशन और डिफरेंट ग्रुप्स पे भी शेयर्ड है, आप वहाँ पे उसकी फोटोज अपडेट कर सकते हैं। इन दैट वे आप एक कंपटीशन का हिस्सा बन जाएंगे जिसमें हमारे पास 5 विनर्स फ्रॉम ईच रीजन मौजूद होंगे। लिहाजा ऑल 3 रीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन दैट, जिसमें हमारे पास सेंट्रल है, साउथ है और नॉर्थ रीजन है। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी फोटोज को अपडेट करने की कोशिश करें और विजिबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करें कि आप लोग एक्टिव हैं अपने अपने सर्कल के अंदर। तो हम सोशल की तरफ होने की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू बिकम सोशल। सबसे पहली जो चीज हमारे माइंड में आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है जब हम सोशल होने की बात करते हैं, तो वो ये होता है कि बीइंग सोशल होना होता क्या है। अगर सोशल होने के बहुत सारे फायदे हैं और हमारे बिजनेस को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और हमारी कंपनी सोशल सेलिंग की कंपनी है, तो सोशल होना होता क्या है और हम किस तरीके से सोशल हो सकते हैं, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। और इसके लिए मुझे आप लोगों का भी इनपुट चैट में चाहिए होगा। अगर आप थोड़ा इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकें, आप लोगों के मैसेजेस हम देख सकते हैं, अगर आप एक दूसरे के नहीं भी देख सकेंगे तो यू कैन स्टिल सेंड अस द मैसेजेस। हमें डायरेक्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं, बल्कि आप मैसेज अगर टाइप करते हैं, आपके ख्याल में सोशल होना क्या है, अगर आप मैसेज में जो उनसा है वो टाइप कर दें। लेट मी मैं आपके जो आंसर्स होंगे आपके नाम के साथ वो मैं यहाँ पे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करता रहूंगा। तो अगर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन डू दैट। आई होप आप चैट में लिख सकते हैं। यप, अगर आप चैट में जाके लिखने की कोशिश करें, आई होप आप लिख सकते हैं। चलें, लेट मी जस्ट एक्टिवेट दैट ऑप्शन फॉर यू। अब आप लिख सकेंगे चैट में जाके, ट्राई करके देखिएगा अगर आप लिख सकते हैं। सोशल होना क्या होता है आपके ख्याल में? इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ऑसम जी। हैव कनेक्शन, मैम मरियम कह रही है, हैव कनेक्शन विद फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जबरदस्त जी, वालेकुम अस्सलाम मैम इकरा। कम्युनिकेशन मैम बुशरा ने लिखा है, मैम मिर्जा ने लिखा है, सोशल इज लाइक एंगेजिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। जबरदस्त जी, एंगेजिंग एंड कनेक्टिंग। ठीक है, और कोई इसका आंसर देना चाहें? Communication, of course, communication is the basic part. Easy to convince, जी है जी। वालेकुम अस्सलाम है आयशा। मैं शरीफुद्दीन साहब ने लिखा है जी। फिर engaging लिखा हुआ है जी। connecting with people लिखा है मैम आतिका ने। मैम राबेल ने लिखा है engaging। फिर है जी, सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म यू कैन रीच टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। जबरदस्त जी। अपॉर्चुनिटी है जी, रिलेशनशिप विद पीपल। तो हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं लोगों के और दे ऑल आर काइंड ऑफ करेक्ट। हम सोशल होने की बात करते हैं और देखते हैं कि सोशल होना हमें क्या सिखाता है, या ओरिफ्लेम हमें क्या इसके बारे में गाइडलाइंस देता है कि हम किस तरीके से सोशल हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज कि जब आप नए लोगों से मिलते हैं, आप उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होते हैं, अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे होते हैं और रिकमेंड कर रहे होते हैं चीज़ों को। इसके साथ साथ आप अपनी रैपिड बिल्डिंग कर रहे होते हैं। ये जो रैपिड बिल्डिंग है
ये बहुत ही एक वाइड फील्ड है जिसमें आप लोगों की क्रेडिबिलिटी जो उनसी है वो काउंट होती है। आप कितने ट्रस्ट वर्दी हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। आप अपनी रिप्यूट बनाते हैं अपने नॉलेज के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को भी मिलते हैं, बीइंग सोशल के किस तरह का एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, उसकी चंद एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इवेंट में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी बर्थडे में जाते हैं, या कोई भी किसी किस्म का इवेंट हो रहा है, वहां पे आप कुछ लोगों को मिलते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं। नॉर्मल सिनेरियो के अंदर आप कहते हैं हाँ जी क्या चल रहा है लाइफ में, लाइफ टफ है, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हाई है, आप हालात हाजरा पर डिस्कशन करते हैं। एक तो ये नॉर्मल जोन्स है, वो आपकी डिस्कशन चल रही होती है। फिर आप वेदर पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये एक जर्नल 2-3 पॉइंट्स है जिस पर डिस्कशन स्टार्ट हो सकती है किसी के साथ भी नॉर्मल सिनेरियो के अंदर। उसके अलावा इवेंट का कोई खास पॉइंट या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो कि उस टाइम के लिहाज से अप्रोप्रिएट है डिस्कस करना, आप उस पर भी गुफ्तगू अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, गुफ्तगू शनीद शुरू कर सकते हैं आप। ठीक है, और फिर साथ साथ बात बात के अंदर आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस शेयर करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, आप जब मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज बाय करने के लिए, अगर आपको किसी ने कोई चीज रिकमेंड की हुई है, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर हम किसी टूथपेस्ट की बात कर लेते हैं, कोई शैम्पू की बात कर लेते हैं, कोई कपड़ों की दुकान की बात कर लेते हैं, अगर आपको कहीं से भी कोई अच्छा फीडबैक मिलता है तो वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। इवन कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट भी कहीं पे देखी अपने फेसबुक के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या आपके किसी रिलेटिव ने आपको कोई रिकमेंडेशन दी है, तो आपकी टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि आप उस प्रोडक्ट को ट्राई करके देखिए। ख्वाह वो कोई खाने की चीज है, ख्वाह वो कोई आइसक्रीम है, ख्वाह वो कोई घूमने फिरने की जगह हो, या फिर कोई इस्तेमाल की चीज हो। आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि जब कोई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि आप वो चीज ट्राई करके जरूर देखें। सेम गोज विद द मूवीज। अगर आप कोई मूवी या ड्रामे की बात करते हैं, मुझे बहुत सारे ड्रामाज जो उनसे हैं, उनमें मैं इन नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि मुझे पता है कि वो ड्रामास बड़ा अच्छा टेस्ट रखते हैं ड्रामास का, मैं उनसे पूछता हूँ कि आजकल कौन सा ड्रामा अच्छा चल रहा है, तो आई कुड वॉच दैट ड्रामा सीरीज या टीवी शो या कोई भी ऐसी मूवी आई हो, मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन सा चल रहा है। लाइक यानी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों की रिकमेंडेशंस पे जाते हैं। इसकी रीजन ये है कि वी ट्रस्ट पीपल मोर, हम लोगों को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हम ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे शेयर कर सकते हैं या कहाँ से हम तक इंफॉर्मेशन आ रही होती है, दैट कैन बी ऑनलाइन एंड दैट कैन बी ऑफलाइन एज वेल। अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास ऑफलाइन के बहुत सारे ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम कहीं पर रेगुलरली सब्जी खरीदने भी जाते हैं या अपने घर की प्रोडक्ट्स भी खरीदने के लिए जाते हैं, कोई रेगुलर जगह हमारी के जैसे दूध या दही की दुकान है, वहां पे अगर कोई भी शख्स जाता है, हम जाते हैं, तो वहां पे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वहां पे एट द सेम टाइम हमें कुछ लोग नजर आते हैं, हमारी उनसे सलाम दुआ भी नहीं होती एट टाइम्स, लेकिन हम उनको बार बार रिपीटेडली देख रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट कैन बी योर पॉइंट एज वेल। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं, आप किसी पार्टी डिनर पे जाते हैं, आप अपने बच्चों की जो आजकल पीटीएम चल रही होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वहां पे जा रहे होते हैं, तो यू कैन गिव योर रिकमेंडेशन एट एनी प्लेस। पिछले दिनों हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रही थी, हम गिविंग योर रियल टाइम एग्जांपल। तो जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो उसके साथ ही एक इवेंट चल रहा था। अब वो इवेंट हमारा नहीं था, हमारा इवेंट एक डिफरेंट हॉल में था, और उसके साथ वाले हॉल में कुछ टीचर्स आई हुई थी एक स्कूल की, तो मेरे पास कुछ लीडर्स मौजूद थे। तो हमने कहा लेट्स जस्ट ट्राई टू बी सोशल, हम जाते हैं, हम इनसे बात करते हैं ओरिफ्लेम के, और उनको अपनी मीटिंग में इनवाइट करते हैं, एंड वी डिड इट। आपको सिर्फ थोड़ा सा करेज चाहिए होता है, थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है, और आप इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो वो जगह बेशक फेस टू फेस है, बेशक ऑनलाइन है। ऑनलाइन कुछ लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लाइक आपके पास अगर हम बात करते हैं मोस्टली जो आप लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम है आपके पास जो हम यहाँ पे मोस्टली यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप इज अनदर प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। हमारे पास फेसबुक मौजूद है, हमारे पास यूट्यूब मौजूद है जिसके ऊपर हम जाके डिफरेंट चैनल्स पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स और अपनी डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्विटर है, और साथ साथ हमारे पास लिंक्डइन है। ये वो प्लेटफॉर्म्स है जो कि यहाँ पे लोग फ्रिक्वेंटली यूज भी कर रहे हैं और इनसे अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है।
लिंक्डइन के ऊपर थोड़े से कम लोग काम कर रहे हैं कंपैरेटिवली, उसके हाईएस्ट पोटेंशियल को अभी तक हमने टच नहीं किया। बहुत सारे लोगों के लिंक्डइन के अकाउंट्स नहीं बने हुए, तो प्लीज ट्राई टू मेक दोज अकाउंट्स एज वेल, और वहां पे भी आप सोशल होने की कोशिश करें। हम आपको आने वाले टाइम के अंदर एडवांस ट्रेनिंग्स के अंदर हो सकता है इन चीजों के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी भी जगह पे सोशल हो सकते हैं, ख्वाह वो ऑनलाइन चैनल्स और मीडियम्स हैं या फिर ऑफलाइन अपॉर्चुनिटीज या कोई इवेंट्स हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये वही बात आ गई है कि अगर हम बात करते हैं आज के टाइम की, टाइम चेंज हो चुका है। पहले आपने देखा होगा कि एक दो टीवी के चैनल्स होते थे, उस पे एक दो एडवर्टीजमेंट्स आती थी, और वो जो एड्स चल रहे होते थे टीवी के ऊपर वो हम देखते थे, और हमारा चीज में कोई भी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता, ठीक है। अब टाइम चेंज हो चुका है, पहले रेडियो के ऊपर मार्केटिंग होती थी एक टाइम पे, फिर न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग पढ़ते थे। अब न्यूज़पेपर की अगर हम आज के दिन की सेल देखते हैं तो वो 25% भी नहीं रही अगर हम आज से 20 ईयर्स पहले जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे घर जो कि रेगुलर न्यूज़पेपर लेते थे, अगर कोई पुराने लोग यानी कि एक हमारे पास पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, लेकिन उनकी हैबिट्स हैं जो कि अभी तक चलती हुई आ रही हैं। आज के टाइम के ऊपर अगर आपने लेटेस्ट ट्रेंड या कोई न्यूज़ पढ़नी होती है तो आप अपना ट्विटर ओपन करते हैं, हम देखते हैं जी आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। आप देखते हैं जी अच्छा अभी मुल्क में क्या चल रहा है, अभी आजकल कौन सी प्रोडक्ट्स आई हैं, यू गो ऑन फेसबुक, यू गो ऑन इंस्टा, यू जस्ट गो थ्रू योर व्हाट्सएप मैसेजेस, डिफरेंट ग्रुप्स को आप देखते हैं कि क्या चल रहा है, एंड यू स्टे अपडेटेड। और पहले ये होता था कि आप कनेक्टेड रहते थे सिर्फ एक सर्टेन सोसाइटी के साथ। अब हम अब एक दुनिया को हम कहते हैं ग्लोबल विलेज बन चुका है, जहाँ पे हमारे पास हर कंट्री की मालूमात भी मौजूद है। आज के टाइम के अंदर जो मार्केटिंग का ट्रेंड है वो टोटली चेंज हो चुका है। आज के टाइम में ये एक छोटा सा सर्वे है, हम लोगों ने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, सिर्फ 14% ऐसे लोग हैं जो कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर बिलीव करते हैं। मतलब कि 14% लोग ऐसे हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट से टू सम एक्सटेंट इन्फ्लुएंस होते हैं, या वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इज समथिंग गुड और हमें इसको कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग, 90% लोग ऐसे हैं जो कि रिकमेंडेशन पे ट्रस्ट करते हैं। और अगर आप अपने आप से ये सवाल करें और अपने आप को एक सिनेरियो में थोड़ी देर के लिए आप डाल के सोचें कि अगर आपके एक कजन ने, जो कि एक रिलायबल पर्सन है, वो आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करता है या लैसे को खाने की चीज रिकमेंड करता है, एंड यू नो कि इसके पास अच्छा भला नॉलेज है, एक्सप्लोर किया हुआ इसने फूड मार्केट को या प्रोडक्ट्स की मार्केट को या मेकअप की मार्केट को, कोई भी मार्केट को, तो आप उसकी बात पे यकीन करेंगे और आप उसकी चॉइस को प्रेफर करेंगे टेस्ट करना। और सेम गोज विद मी एज वेल, मैं इसको अपने पे रख के सोचता हूँ, तो अगर मुझे लैसे असलम साहब कोई चीज रिकमेंड करेंगे और लाहौर की कोई खाने की चीज रिकमेंड करेंगे, वो मेरे लिए मस्ट ट्राई हो जाएगा। इसी तरह इफ आई गो टू कराची, I'll just take feedback from सदफ फर्स्ट कि मैं कहाँ पे जाऊँ। अब मेरे पास फेसबुक पे जितने मर्जी ऐड आते जाएं, लेकिन मैं रिकमेंडेशन को प्रेफर करूँगा, ठीक है। सो दिस इज विद द मेजोरिटी एक्चुअली, यही केस मेजोरिटी के साथ है, लोग रिकमेंडेशंस पे जाते हैं। एट टाइम्स वो डायरेक्टली हमारी बात उसी वक्त नहीं मानते, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है, ठीक है। और जब वो उस चीज से कनेक्ट होते हैं तो वो चीज उनको फेमिलियर लगती है और उनकी प्रायोरिटी पे वही होती है, प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर वही चीजें होती हैं जो कि रिकमेंडेड। अब आप कहाँ पे इन लोगों को ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी एक सोशल सर्कल को ट्रिगर कर सकते हैं, सो वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होना स्टार्ट होती है, ठीक है। सो दैट इज योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। और अगर हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात करें तो उसमें दो टाइप के कॉन्टैक्ट आपको मिलते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर वो कॉन्टैक्ट जो कि आपके मोबाइल फोन में सेव्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है, आपके जानने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कोलीग्स हैं, एक्स कोलीग्स हैं, आपके असातिज़ा हैं, आपके रिश्तेदार, आपके कोई भी रिश्तेदार, दूर के भी रिश्तेदार हैं, वो आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। इसकी आसान डेफिनेशन ये होती है, जब आप एक दूसरे को मिलते हैं तो यू गेट अ वार्म फीलिंग बेसिकली, आप चेहरे पे आपके स्माइल होती है, आपको खुशी होती है इन लोगों से मिलके, फॉर सम हाउ थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है। दूसरी, और उनको भी होती है, जो दूसरे कॉन्टैक्ट की हमारी टाइप है वो है कोल्ड कॉन्टैक्ट। कोल्ड कॉन्टैक्ट जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक दुकान पे जाते हैं, वहां पे कंटिन्यूसली आपको एक शख्स नजर आता है
और आप उसको देखते हैं, कभी कभी सलाम दुआ भी हो जाती है, बाज़ औक़ात आप सिर्फ यानी कि देख के अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं, वो अपनी चीज़ खरीदते हैं, आप अपनी चीज़ खरीद के तो आप घर वापस आ जाते हैं। ये सारे कॉन्टेक्ट्स जिन जो कि आपको नजर आते हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन आप उनसे बात करते हुए थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, वो सारे आपके कोल्ड कॉन्टेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप सिर्फ अपने नेबरहुड की बात करते हैं, सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो है वो घरों को देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कह लो जी मेरे इर्द गिर्द कोई घर ही नहीं है, ठीक है, मेरे इर्द गिर्द कोई एरिया ही नहीं है, कोई सोसाइटी ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, अनटिल और अनलेस आप किसी जंगल में मौजूद हो। ठीक है, इवन के विलेजेस के अंदर भी आप थोड़े से गैप से घर हो सकते हैं, लेकिन यू हैव अ नेबरहुड देयर एज वेल। ठीक है, और अगर गांव के नेबर गांव में चले जाएं तो वो फिर एक और नई सोसाइटी बन जाती है आपकी। तो देयर आर मैनी मैनी कॉन्टेक्ट्स वी हैव अराउंड अस जिनसे हम बात नहीं करते और हम यहाँ पे रिलक्टेंट होते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप लेस से, एक छोटी सी बात है कहने के लिए, आज आप डिसाइड करें कि मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सपैंड करना है, और आप अपने चले साथ वाले घर में नहीं जाते, आप नेक्स्ट स्ट्रीट में चले जाते हैं और वहां पे जाके सिंपल उनको कहते हैं कि हे मेरा नाम ये है जी, अस्सलाम वालेकुम, और मैं ओरिफ्लेम का जो सा बेसिकली मैं ब्रांड पार्टनर, मैंने अभी अभी अपना ये काम स्टार्ट किया है। सो ये कैटलॉग है, आई जस्ट वांट ड्रॉप इट हियर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट इंटरेस्टेड है आप किसी में, डू लेट मी नो, आई मीन योर नेबरहुड, आई कैन हेल्प यू गेटिंग दैट। अब अगर आपके नेबरहुड से आप ऑर्डर इकट्ठे कर रहे हैं ना खाली, तो आप जरा सोचिएगा कि कितनी चीजें बचती हैं। एक तो आपको सेपरेटली ऑर्डर मंगवा के नहीं भेजना पड़ता, आप खुद भेज सकते हैं, दे सकते हैं उनको, उनके लिए कन्वीनियंस, आपके लिए कन्वीनियंस, हर चीज आसान हो जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं जिन पे अभी हमने काम नहीं किया हुआ, और वजह क्या है, क्योंकि वी आर रिलक्टेंट। आई स्टिल रिमेम्बर पेंडेमिक से पहले जब हम बाहर प्रोस्पेक्टिंग की एक्टिविटीज करते थे, तो आप यकीन कीजिएगा मेरे पास अगर 15-20 लीडर भी होते थे तो वो नए लोगों से बात करते हुए शुरू में थोड़े से रिलक्टेंट थे। ठीक है, इवन कि व्हेन आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी बड़ा वो एक हेजिटेशन फील हो रही थी। फिर जब मुझे 10-15 लोगों ने रिफ्यूज किया कि नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा रिफ्यूजल ही आएगा ना तो इट इज ओके। फिर जहां पे जाके मुझे 10 लोग रिफ्यूज करते थे, 3-4 लोग ऐसे भी थे जो यस करते थे। तो सेम गोज विद एवरीबडी, आपको बहुत सारे रिफ्यूजल भी मिलते हैं, आपको बहुत सारी एप्रिसिएशन भी मिलती है, और आपको बहुत सारे मेंबर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आपने अपनी एफर्ट्स को इंक्रीज करना है। अगर आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इंक्रीज करना है, तो जो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो लिमिट आप खुद सेट करते हैं। वो आपका आउटर सर्कल है, वो ज्यादा बड़ा सर्कल होता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे लोग आ जाते हैं। वंस अगेन, यही अगर हम चीज को अप्लाई करते हैं ऑनलाइन के ऊपर, तो बहुत सारे आपके डायरेक्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, जिनकी रिकमेंडेशन ऑफ एडिशन आपके पास फेसबुक पे और इंस्टा पे भी आ रही होती है। तो आप अगर उनको अपनी फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड करते हैं, आप उनके किसी चैनल को ज्वाइन करते हैं, वो आपके चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो एट टाइम्स आप थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं बात करने में। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक्सेप्शन क्रिएट करें, आपकी इनकम जल्दी बढ़े, और आप बेहतर तौर पे जो है वो ओरिफ्लेम के एज अ लीडर इमर्ज हो, तो ये जो 3 ट्रेनिंग्स हमने आपको दी हैं, एक माई फर्स्ट फ्लाइट की थी, फिर हमने प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट की बात की थी। अगर आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो आप उनसे बात करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारी लास्ट वीक की ट्रेनिंग थी, आप अपनी प्रोडक्ट को जान सकेंगे, और हमने आपको कम्युनिकेट किया है कि आप क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अब ये सारे लोग जो आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट नजर आ रही है, अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर अपने जो से हैं वो आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता होगा कि आपने अपनी कन्वर्सेशन को किस वे में ड्राइव करना है और किस तरीके से ड्राइव करना है। अगर हम बात करते हैं बिगेस्ट टूल जो कि हम शेयर कर सकते हैं, तो वो हमेशा से हमारे पास सबसे बिगेस्ट टूल वो कैटलॉग रहा है। जो कैटलॉग है हमारे पास, दैट इज नंबर 1 टूल ऑफ सोशल सेलिंग। ये चीज अपने माइंड में आप रख लें। मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों कुछ लोग मेगा ओएम के अंदर भी आके दे वर लाइक क्वाइट रिलक्टेंट बाइंग अ हार्ड कॉपी ऑफ अ कैटलॉग। वो थोड़े से कहते हैं कि हम हार्ड कॉपी क्यों खरीदें, हम तो सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है, हमारे पास कैटलॉग ई कैटलॉग अवेलेबल है, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। उनके बड़े वैलिड कंसर्न थे, ठीक कह रहे थे। लेकिन जब आप एक डायमेंशन में आगे जाते हैं तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को लिमिटेड कर देते हैं, आपको हर डायरेक्शन में आगे जाना है। हार्ड कॉपी की अभी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। बहुत सारे लोग टेक सेवी नहीं है, अगर आप हैं भी, आपके बहुत सारे कंज्यूमर और आपके नए मेंबर्स टेक सेवी नहीं होंगे, वो इतने ज्यादा एडवांस और सिस्टम्स को अभी भी नहीं समझते बहुत सारे।
तो उनके लिए हमारी कैटलॉग की हार्ड कॉपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो हमारी प्रायोरिटी अब जो सी है वो सॉफ्ट कॉपीज की तरफ मूव करने की है, लेकिन हार्ड कॉपी स्टिल हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। लाइक अगर आप अपनी हार्ड कॉपी कैटलॉग की अपने नेक्स्ट स्ट्रीट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर आप उनसे अपडेट लेते हैं उनके ऊपर, तो आपको हो सकता है कुछ बेनिफिट मिले। सिर्फ हिम्मत करने की बात है। आज आप बाहर जाएं नेक्स्ट स्ट्रीट पे और वहां पे जाके अपने जो उनसा है, या एक गली छोड़ के अगली गली स्ट्रीट में चले जाए, उनको बता दें मैं इस एरिया से आई हूँ और आई एम जस्ट इन योर नेबरहुड और ये मेरा बिजनेस है, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ऑलरेडी ओरिफ्लेम के हो। ठीक है, तो कैटलॉग हमारे पास सबसे नंबर 1 टूल है आपकी जो सोशल सेलिंग में यूज हो सकता है। वंस अगेन ई कैटलॉग लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट प्रैक्टिसेस और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास ई कैटलॉग की फैसिलिटी मौजूद है। इसके अंदर आपके पास बहुत एनरिच्ड अकाउंट है, बड़ी अच्छी किस्म की वीडियोस है, फीडबैक है आपके पास। आपको इसके अंदर वंस अगेन कैटलॉग वाली सारी चीजें मिल रही होती हैं, इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे होते हैं, आप इनको ब्राउज कर सकते हैं बड़े इजीली। वो लोग जो कि जिनको आप थोड़ा इंस्पायर करना चाहते हैं, वो टेक्स हैवी भी हैं, वो इससे बड़े इंस्पायर हो सकते हैं। इसको आप राइट वे में अगर यूज करते हैं तो ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टूल है। सेकेंडली इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये आपके मोबाइल फोन के, बल्कि हर एक के मोबाइल फोन में मौजूद है या सिर्फ फ्यू क्लिक्स अवे है। तो आपका इन्वायरमेंट भी जो सा है वो क्लीन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हार्ड कॉपी है कैटलॉग की, वो मिसप्लेस भी हो सकती है कि रख के भूल भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी यू कैन ऑलवेज एक्सेस। और यानी कि ई कैटलॉग इज समथिंग जो कि हर एक के लिए इजीली एक्सेसिबल है विद ऑल फीचर्स, बल्कि कुछ एडवांस फीचर्स भी इसके अंदर आपके पास मौजूद आ रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, लेटेस्ट अपडेट हो रही होती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कैटलॉग शेयरिंग के हवाले से। जरा देखिएगा कि आप स्टेप 1 पे करते क्या और किस तरीके से आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना है। तो स्टेप 1 के अंदर जब आप ई कैटलॉग शेयर कर रहे हैं, इवन के दिस अप्लाइज ऑन द कैटलॉग एज वेल, कुछ चीजें इस पे भी अप्लाई होती हैं आपकी हार्ड कॉपीज पे भी, आप उनको भी खुद ही डिफरेंशिएट कर सकेंगे इसको। तो स्टेप 1 के अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको खुद फेमिलियराइज होना है प्रोडक्ट्स के साथ, कैटलॉग के साथ। आपको अपनी कुछ चीजों की लिस्ट बनानी है जो कि आपको पर्सनली पसंद है। ठीक है, वाई पर्सनली? क्योंकि अगर मुझे कोई चीज पर्सनली पसंद होगी तो मैं उसको बेहतर तरीके से रिकमेंड कर सकता हूँ। एक, अगर मुझे कोई पर्सनली चीज पसंद है, इट मीन्स कि मैंने उसको ट्राई किया हुआ, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस और इन अ लेजिट वे, यानी कि सही तरीके से एक एक पावरफुल वे के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे पास क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ। तो सबसे पहले आपने फेमिलियराइज होना है और अपनी प्रोडक्ट्स जो कि आपकी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने जो उनसे शॉर्ट लिस्ट करना। स्टेप 2 के अंदर कम्युनिकेट। अब यहाँ पे आ रहा है, देखें, एक होता है कि मैं आपको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको पता है एएसएम्स आपको कहते रहते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट पे काम करो, ये वाली प्रोडक्ट जो उनसे ये बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आप करते वही हैं जो कि आपका दिल करता है इवेंचुअली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, कुछ चीजें आपको खुद को बहुत पसंद है, और जब ऐसी चीज जो कि आपको खुद को पसंद होती है, आप वो वाला काम करते हैं, आप वो वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके दिल से डायरेक्टली बाहर निकल रही है, तो वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है और आप ज्यादा एंथुजियास्टिकली उस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। आपके वॉइस मैसेज के अंदर भी एक्साइटमेंट होगी अगर आप उसको भेजेंगे, आप कोई बात कर रहे होंगे उसके अंदर एक्साइटमेंट होगी। और यकीन कीजिएगा, अगर आप एक्साइटमेंट के साथ और एंथुजियाज्म के साथ कोई प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेरा एक कजन कहता है यार वो एक मैंने मूवी देखी थी, वो बहुत अच्छी है, देख लेना यार, अच्छी है, मैं रिकमेंड करता हूँ। और एक मेरे पास कजन आता है मेरा और वो मुझे इंथुजियास्टिकली कहता है और कहता है कि हे उमर, तुमने वो वाला जोन्स है वो टीवी शो देखा है यार, वो बहुत कमाल है, यू मस्ट वॉच, यू शुड वॉच इट, मस्ट वॉच है जी, बहुत हाई रैंकिंग है और मैंने तो बड़ा एंजॉय किया इसको। अब इसके बताने के तरीके में और पहले वाले कजन के बताने के तरीके में डिफरेंस है। जो इंथुजियास्टिकली बताएगा मुझे और रिकमेंडेशन देगा, मैं उसकी बात ज्यादा अच्छे तरीके से मानूंगा। आप इस सिचुएशन को अपने पे भी ला के सोच सकते हैं। लिहाजा जब आप कम्युनिकेट करें और अपनी फेवरेट प्रोडक्ट को करें तो उसमें एंथुजियाज्म होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए आपकी रिकमेंडेशन के अंदर, लोग आपकी बात मानेंगे। फिर आ गया जी शेयर। शेयर करना। जब आप
आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट या कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है, अब अगर आपने उसकी प्रोडक्ट या आपने हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपने कैटलॉग की देनी है, तो आप हमेशा बात करने के बाद उस शख्स के लिए आसानी पैदा करें। आपने कोई चीज प्रोडक्ट रिकमेंड की है, अब आप उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर मैं किसी को कोई खाने की जगह रिकमेंड करता हूँ, साथ में उसकी लोकेशन शेयर कर दूं, ठीक है, अब वो शख्स के लिए आसानी पैदा हो गई। अब जब आपने ओरिफ्लेम की कोई प्रोडक्ट शेयर की उसकी इंफॉर्मेशन आपने कम्युनिकेशन एंथुसियास्टिकली की है, अब जब आप वो इंफॉर्मेशन उसकी शेयर कर रहे हैं और वो ई कैटलॉग की शक्ल में या कोई प्रिंट आप हार्ड कॉपी दे रहे हैं, तो दैट इज समथिंग जो कि उस शख्स के लिए आसानी क्रिएट करती है और आप अपनी सेल को क्लोज करने के चांसेस इंक्रीज कर। वंस अगेन, क्लोजिंग सेल टू ओरिफ्लेम इज लाइक ओपनिंग अ न्यू रिलेशनशिप। आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और उसकी बुनियाद रख सकते हैं जी। स्टेप 4 की अगर हम बात करते हैं, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉलो अप करना। आप अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को कोई खाने की जगह रिकमेंड किया तो इट इज फाइन, दैट इज गॉन नाउ। अब डिफरेंस आ जाता है, वो एक रिकमेंडेशन है खाली, लेकिन दिस इज योर बिजनेस। इसके अंदर आपने थ्रू आउट आगे की तरफ भी जाना है, कुछ स्टेप्स आपके पास एक्स्ट्रा एडिट है यहाँ, क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपका बिजनेस रन हो रहा है, ठीक है, और आप लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। और वंस अगेन आप सोसाइटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। वंस अगेन अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो आपके साथ एसोसिएटेड है उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस से, ठीक है। इसी तरह वो लोग जिनको अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप उनको भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी उनके डोर स्टेप पे पहुंचा रहे हैं, उनका भी फायदा कर रहे हैं। तो फॉर दैट आपको स्टेप अहेड जाना पड़ेगा, जिसके लिए वंस अगेन शेयर करने के बाद आपने उनसे फीडबैक लेना है, आपने उनसे पूछना है, आपने उनसे फॉलो अप करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप उनसे पूछें कि उनको कोई प्रोडक्ट पसंद आया या उनका क्या फीडबैक है, उनको कैसा लग रहा है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट योर रिकमेंडेशन, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की क्या चीजें हैं, और फिर उस बेस के ऊपर आप ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईच प्रोस्पेक्ट, ठीक है, कस्टमर मीन्स प्रोस्पेक्ट, आप उनसे फॉलो अप करते हैं। स्टेप 5, आप उनके साथ मिल के ऑर्डर प्लेस करते हैं। देखें, अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वैसे तो हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, इट्स वेरी इजी एज वेल नाउ दीज डेज। आपको वो व्हाट्सएप के ऊपर भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ई कैटलॉग के ऊपर अगर उन्होंने ऑर्डर भेजना है, दे कैन सेंड इट टू यू डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑर्डर उनसे कलेक्ट करना है, या आप उनको तरीका सिखा रहे हैं, या आप उनको गाइड कर रहे हैं, तो दैट इज अ बेटर अप्रोच कि किस तरीके से उन्होंने अपने ऑर्डर को प्लेस करना है। ऑर्डर कलेक्ट करना और फिर ऑर्डर प्लेस करना उनके साथ, और उनको कंफर्मेशन देना और उनके साथ इन टच रहना ऑन अ लाइटर नोट। रिमेंबर, आप हायर एंड के ऊपर हैं। हायर एंड के ऊपर क्यों है? क्योंकि आप दूसरे को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्दो कि आपका बिजनेस भी रन हो रहा है, लेकिन यू आर द वन जो कि शो रनर है, तो आपने अपनी ड्राइव चलानी है इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्टेप 6 की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो असल आपकी सेल स्टार्ट होती है ना, वो होती है आफ्टर सेल पे। आपने कोई आफ्टर सेल कर दी है और आपने उसके बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया अपने कंज्यूमर को, अपने मेंबर को, अपने कंज्यूमर को, जो आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, जो आपका एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, वो आपका बेसिकली आपको लेके चलता है कस्टमर लॉयल्टी की तरफ। यानी कि यू स्टार्ट गेटिंग रिपीटेड ऑर्डर्स, और जब आपके रिपीटेड ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, बेशक वो 3 महीने बाद आ रहे हैं, आपको तब असल बिजनेस में फायदा होना शुरू होता है। रिमेंबर, जो आपका रिपीटेड कस्टमर होता है उसकी कॉस्ट भी कम होती है, वो आपका टाइम भी कम लेता है, और उसका ऑर्डर भी कंफर्म होता है, और उसके साथ साथ आप फिर कंटिन्यूसली उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी प्रोडक्ट आ रही है, आप उनसे पेमेंट उसकी रिसीव कर रहे हैं या उनसे पेमेंट करवा रहे हैं, उसके बाद आपने उनके साथ एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद रखनी है। एक अच्छा जो आपका प्रोफेशनल रिलेशन है वो आपके साथ ओपन होना चाहिए, जिसमें आप उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकें एज अ कंज्यूमर भी और एज अ ब्रांड पार्टनर भी। अगर आप उनके स्पॉन्सर हैं, आपको कोई वीआईपी कस्टमर मिल गया है, या आपको कोई ऐसी ऑप्शन मिल गई है जो कि रिकमेंडेड थी और किसी और ने कोई आपका सोर्स बन के आया है, तो आपको उनको साथ लेके चलना। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, ये एप्लीकेशन आर वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। ओरिफ्लेम मोबाइल फोन है या मोबाइल ऑफिस है हमारे पास,
हमारे पास ओरिफ्लेम ऐप और बिजनेस ऐप है, इनके थ्रू आप ऑर्डर कलेक्ट भी कर सकते हैं, प्लेस भी कर सकते हैं। रिमेंबर, आपने सेल करना है, एक्टिवेट रखना है लोगों को, और फिर आपने उनको रिक्रूट करना है। इवन आपका जर्नी स्टार्ट प्रोडक्ट से हो रहा है, लेकिन वो एंड आपका रिक्रूट पे हो रहा है, और फिर वो कंटिन्यू कर रहा है इन अनदर शेप। ठीक है, तो वंस अगेन हमारी जितनी भी प्रोस्पेक्टिंग होती है उसकी बेस दो ही चीजें हैं, एक आपकी प्रोडक्ट है और दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे पास सेल करने के लिए दो मेजर, एक टेंजिबल और इनटेंजिबल की अगर हम बात करते हैं, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो टेंजिबल हैं, और हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो इनटेंजिबल है। मतलब ये कि वो नजर नहीं आती, आसान अल्फाज के अंदर इनटेंजिबल, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट्स यू कैन टच एंड फील। तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ऑलवेज मेक द प्रोडक्ट योर बेस, अपनी प्रोडक्ट को साथ लेके चलें, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस आपका डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, वीआईपी कस्टमर का। ये वो अपॉर्चुनिटी है जब ये स्टार्ट नहीं हुई थी, जब ओरिफ्लेम स्टार्ट हुआ था, एटलीस्ट मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि मुझे अगर 4 साल हो गए हैं ओरिफ्लेम के अंदर, जब मैं आया था तब से मैं ब्रांड पार्टनर्स और लीडर्स को ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि कोई ऐसी ऑप्शन हो जिसमें हम कस्टमर से डायरेक्टली पैसे ना लें। सो नाउ दैट इज समथिंग जो कि अब हमारे पास आ चुके हैं, और इसकी डिटेल बताने के लिए हमारे पास मौजूद है जी सदफ। जैसे कि आपको पता है कि सदफ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिटेल्स बताती है, ऑल द वे फ्रॉम कराची। आप सब लोगों की तालियों में जी सदफ। थैंक यू सो वेरी मच उमैर, इतने अमेजिंग तरीके से आपने सारी डिटेल्स बहुत ही आसान वर्ड्स के अंदर आपने शेयर की। आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट कि मैं स्क्रीन शेयरिंग अपनी तरफ से हाँ कर जी दूं। सदफ, लेट मी जस्ट स्टॉप द स्क्रीन और आप शेयर कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सदफ। वेलकम, थैंक यू मैम। सो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वीआईपी कस्टमर की, क्योंकि हम इस बात को तो जान ही चुके हैं कि हमारे लिए प्रोडक्ट के हवाले से अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करना और फिर उसके साथ साथ किस तरीके से हम उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं, इसमें आपको वीआईपी कस्टमर का ऑप्शन काफी ज्यादा मदद करेगा। आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर जब किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, स्पेशली जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में, जब हम अपने फैमिली में बताते हैं, तो सबसे पहले एक ही बात पूछते हैं और एक ही बात कहते हैं, जी हमें कितने डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, आपने तो अपना बिजनेस शुरू कर लिया, आप तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे डिस्काउंट चाहिए। और इस तरह की सिचुएशन होती है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो कस्टमर है, जब आप उन्हें कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि जी ठीक है, आप मुझे और पिक्चर्स भेज दो, और फिर हम क्या करते हैं, हम उन्हें कैटलॉग का पीडीएफ जो है वो शेयर कर देते हैं। ठीक है, सो जैसे हम डिजिटली जितने ज्यादा डे बाय डे एडवांस होते जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह डिजिटली चीजों में भी आप एडवांसमेंट देख रहे होंगे। और अब अगर मैं पीडीएफ की बात करूं, तो पीडीएफ इज क्वाइट बोरिंग एज कम्पेयर टू ई कैटलॉग। ठीक है, सो हम इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमारे लिए इस बिजनेस के अंदर सोशल रहना और शेयर करना चूंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अब हम मेजॉरिटी लोगों के साथ ऑनलाइन कनेक्ट रहते हैं। और जब हम बात करें कि हमने ऑनलाइन डिजिटल लीडर बनना है, हमने डिजिटली अपने बिजनेस को करना है, तो दिस मींस आप डिजिटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिजनेस डिजिटली बहुत ज्यादा लोगों को ग्रिप कर रहा है, और उसके साथ जब आप शेयरिंग कर रहे हो तो वो उनको फील डिफरेंस में पता चले फील डिफरेंस करें। सो हम शेयर एंड अर्न की जैसे कि बात करें तो यस, इस बिजनेस के अंदर अब जब से हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है, ये डिजिटल टूल, इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक लिंक जो कि हम ई कैटलॉग शेयरिंग का शेयर करते हैं, तो उनके पास बिल्कुल उसी तरह ओरिफ्लेम की वेबसाइट की तरह ही एक स्टोर खुल जाता है, या हम उनके साथ अपना पर्सनल ब्यूटी स्टोर शेयर कर देते हैं, जिस ब्यूटी स्टोर के अंदर हमारी कुछ खास पसंद की प्रोडक्ट्स होती हैं, या हम
प्रोडक्ट्स को समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छे डिस्काउंट्स में है, या मेरा कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि ऐसे अगर आप कैटलॉग उठा के देखेंगे तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिकॉज उसमें आपके पास स्किन केयर है, चारों कैटेगरीज हैं। और अगर स्किन केयर की भी बात करूं तो स्किन केयर में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और मे भी आपने उनसे जिस रेफरेंस में बात की थी वो आपने टी ट्री के बारे में बात की थी, उनको सजेस्ट की थी टी ट्री, और जब आपने उनको कैटलॉग पूरी पीडीएफ शेयर कर दिया तो हुआ क्या कि जब वो खोलेंगे और भी बहुत सारी स्किन केयर की चीजें देखेंगे तो मे बी आपका कस्टमर कंफ्यूज हो जाए और वो आपसे पूछे कि यार अच्छा तो आप मुझे टी ट्री बता रही हैं, प्योर स्किन भी है, ये भी है, वो भी है, मेरे लिए और अच्छा क्या है। इन सारे सिनेरियोज के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। सो बेस्ट थिंग इज कि आप अपने आप को डिजिटली यूज करें, डिजिटली बढ़ाएं आगे, क्योंकि अब लोगों को टाइम बहुत कम है और वो बहुत कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें देखना और अपने ऑर्डर को प्लेस करना पसंद करते हैं। सो वीआईपी कस्टमर से हमें क्या फायदा होगा? सबसे पहले हमारे लिए शेयरिंग बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। और अब आप लोग मुझे शेयर कमेंट के अंदर बता सकते हैं आप में से ई कैटलॉग किस किस ने देखी हुई है। जी बिल्कुल, कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं ई कैटलॉग किस किस ने देखी हुई है। ओके ग्रेट, तो आप लोगों ने देखी है। और अगर मैं बात करूं ब्यूटी स्टोर की, तो ब्यूटी स्टोर किस किस ने अपना बना लिया है? ओके गुड 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 गुड, काफी सारे लोगों ने बना लिया है, दिस इज गुड, जबरदस्त। सो हम यहाँ पे आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि आपके पास अब वीआईपी कस्टमर में शेयरिंग करना बहुत ज्यादा आसान है। आप बहुत ही अच्छा कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं और या आप अपना ब्यूटी स्टोर शेयर करते हैं, उसके साथ आसानी हो जाती है आपके कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में, और आप अच्छा ऑर्डर जो है वो गेट भी कर पाते हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी को कैटलॉग शेयर कर देते हैं तो वो 2-2 दिन या 2-2 हफ्ते हमें जवाब ही नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं यार अभी तक मैंने पूरी कैटलॉग खोल के देखी ही नहीं है। क्योंकि अब कैटलॉग में इतने ऑप्शंस हैं तो हमारी कोशिश ये भी हो रही होती है कि भाई हम ज्यादा चीजें देख लें, और ज्यादा के चक्कर के अंदर हम एक प्रोडक्ट भी ऑर्डर नहीं कर पाते। तो आई कैन सी कि ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ भी आ रही होती हैं। अच्छा, इसके साथ वीआईपी कस्टमर को एक आसानी और ये हो जाएगी कि उनका ऑर्डर जो है वो उन तक शिप हो जाएगा। अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों को डिलीवरीज का भी इशू आ रहा होता है। सो यस, यहाँ पे जैसे ही आपका कस्टमर अपना ऑर्डर डन करता है और एड्रेस की डिटेल्स मेंशन करता है तो पेमेंट के साथ साथ ये कोरियर के थ्रू उनके घर पे डोर स्टेप के ऊपर पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ क्या फायदा होगा कि आपका जो कस्टमर है उसे 15% जो है वो डिस्काउंट भी मिल रहा होगा, ठीक है। और सॉरी, आपको जो है बेसिकली 15% उनके बीपीएस के ऊपर जितना भी ऑर्डर जनरेट होगा उसके ऊपर आपको बोनस, यानी कि जो हम प्रॉफिट कह रहे होते थे बेसिकली, तो वो आपको भी जनरेट हो रहा होगा जो कि वीकली होगा। तो आपके न सिर्फ कस्टमर्स बढ़ेंगे और कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे तो उन ऑर्डर करने से न सिर्फ आपके बिजनेस पॉइंट्स बढ़ेंगे बल्कि उसके साथ साथ आपको बेनिफिट भी 15% के हिसाब से अकॉर्डिंगली वीकली जो है वो मिल रहा होगा। अच्छा, इसके साथ अगर हम आगे बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ब्यूटी स्टोर में जैसे प्रोडक्ट लिस्ट आपने एक एल्बम क्रिएट करनी है तो वो आप डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स की भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरह आपके पास तकरीबन 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप ईच लिंक में ऐड कर सकते हैं, यानी कि 10 एल्बम्स आप बना रहे होंगे और हर एल्बम के अंदर आप 10 प्रोडक्ट्स को लिंक कर सकेंगे। सो आपकी शॉप पे जब कोई आएगा, जब आप किसी के साथ अगर अपनी ब्यूटी शॉप का लिंक शेयर करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो आपने अगर 5 बनाई हुई है या आपने 10 एल्बम्स ही बनाई हुई है तो सबसे पहले उनके पास जो पेज ओपन होगा वो आपके ब्यूटी स्टोर के बने हुए एल्बम्स का हाईलाइट से ओपन होगा।
और उसमें आप उनको शेयर करते हुए बता भी सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट एल्बम है ना उसको सबसे पहले तुमने खोल के देखना है, क्योंकि उसमें तुम्हारी पसंद की चीजें होंगी, ठीक है। तो हम इस तरह कस्टमाइज भी कर सकते हैं और हमें पता भी होता है अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल आप मेल्स के लिए एक अलग एल्बम बना सकते हैं, आप टीनेजर्स के लिए एक अलग एल्बम बना सकते हैं, आप एंटी एजिंग के ऊपर एक अलग एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, आप हेयर एंड बॉडी केयर के ऊपर चीजों के ऊपर एक अलग एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स टोटली योर बिजनेस, आपका बिजनेस है। सोचें, जरा दिमाग लगाएं, अपना वक्त इन्वेस्ट करें इस बिजनेस के अंदर ताकि इस बिजनेस को आप क्रिएटिव तरीके से कर सकें। सो शेयर एंड अर्न पे आप कैसे जाते हैं? शेयर एंड अर्न का ऑप्शन आपके पास एप्लीकेशंस के अंदर भी मौजूद होता है, बट अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स ओरिफ्लेम वेबसाइट से बताऊं तो आप ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड पे जो आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और माय बिजनेस में आप जाएंगे और फिर आपने सेकेंड ऑप्शन जो सिलेक्ट करना होगा वो आपने करना होगा बिजनेस टूल का। बिकॉज वी से शेयर एंड अर्न, ये कैटलॉग आपका बिजनेस टूल है और इसीलिए आपको ये बिजनेस टूल्स में मिलता है और उसके बाद आप शेयर एंड अर्न के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोडक्ट लिस्ट बनाने के लिए, यानी कि अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप 10 एल्बम तकरीबन बना सकते हैं और हर एल्बम में 10-10 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो शेयर एंड अर्न के नीचे ही आपको एरो के साथ नजर आ रहा होगा पर्सनल प्रोडक्ट लिस्ट। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक अपनी एल्बम नहीं क्रिएट की तो आप पहले पर्सनल प्रोडक्ट लिस्ट पर क्रिएट कीजिएगा, उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स के कोड्स जो हैं वो आप सर्च करते हुए साथ साथ उस पिक्चर को ऐड करते जाइएगा, तो वो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो क्रिएट होती चली जाएगी। और फिर जब आप शेयर एंड अर्न पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से आपके पास विंडो ओपन होगी जिसपे सबसे ऊपर लिखा हुआ है शेयर एंड अर्न। सबसे ऊपर जो लिंक है ये है बेसिकली ई कैटलॉग शेयरिंग का, यानी कि जब आप किसी के साथ कैटलॉग पूरी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बोरिंग ना हो, आपका कस्टमर जो है वो जब उसे कैटलॉग को ओपन करे तो बिल्कुल भी बोर ना हो और ऑर्डर वो साथ साथ इजीली कर सके, बजाय इसके कि वो पेन पेपर पकड़ के बैठे और पीडीएफ में देखे और साथ कोड लिखे और वो बाद में आपको बताए पिक्चर खींच के यार ये प्रोडक्ट कोड्स मैंने लिख दिए, ये चीजें मुझे चाहिए। आपका कस्टमर खुद अपने हाथों से एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा। आप सोचें, आपका बिजनेस है ये और आप अपने बिजनेस में कितनी एडवांस हो चुकी है और कितने अमेजिंग टूल्स हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो शेयर कैटलॉग, ई कैटलॉग के लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर सकती हैं और शेयर करेंगी। जिनके पास भी ये बेसिकली लिंक शेयर होगा और वो जब लिंक को ओपन करेंगे तो उनके पास डायरेक्टली ओरिफ्लेम की वेबसाइट जैसे आपके पास खुलती है बिल्कुल उसी तरह से खुलेगी, लेकिन हाँ लेफ्ट हैंड की जानिब कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं, जैसे कि ये माय बिजनेस के ऑप्शंस होते हैं और इसके अंदर आपकी एक्टिविटीज और आपकी टीम्स और बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, वो सब चीजें उनको नहीं दिख रही होती हैं, ठीक है। सो ई कैटलॉग के लिंक पर क्लिक करने से जो उनके पास कैटलॉग ओपन होगी उसमें हर प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ है, उसमें बहुत छोटी छोटी सी प्यारी सी वीडियोस भी हैं जिसके अंदर ट्यूटोरियल्स भी हैं, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स भी हैं और शॉपिंग बैग बना हुआ है जिस पे वो क्लिक करते जाएंगे तो ऑर्डर उनका कार्ट में ऐड होता चला जाएगा। सो इस तरह आपका कस्टमर जो है बहुत ही आसानी से इन सेकेंड्स या यू कैन से इन मिनट्स वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा और आपके पास उतनी ही जल्दी ऑर्डर रिसीव होगा। दूसरा ऑप्शन, अगर आपने किसी को रिकमेंडेशन कर दी है या करनी है तो पर्सनलाइज्ड इस तरह के लोगों को अपने पर्सनल ब्यूटी स्टोर का लिंक जरूर शेयर करें ताकि वो आपसे इम्प्रेस भी हो सके आपके बिजनेस की एडवांसमेंट से भी। सो जब आप पर्सनल ब्यूटी स्टोर का लिंक शेयर करेंगे और जो भी इस पर क्लिक करेगा तो डेफिनेटली उसके पास सबसे पहले मेन पेज पर वही सारी एल्बम्स नजर आएंगी जो आपने क्रिएट की हुई है और फिर उसके साथ साथ वो अपना ऑर्डर जो है वो एड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर यहाँ पे एल्बम क्रिएट करें तो इस जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट की एल्बम बनाई है आप यहाँ से भी डायरेक्टली कॉपी लिंक को कर सकते हैं और नीचे शेयरिंग के लिए आपके पास फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, डिफरेंट ईमेल वगैरह का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली इस लिंक को शेयर कर सकते हैं।
सोशलाइजिंग और शेयरिंग के बारे में हमने बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह लर्न की हैं, एंड आई एम श्योर कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो रही होंगी। यस, क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे आंसर कर देती हूँ क्योंकि ये वीआईपी से ही रिलेटेड है। सो वीआईपी कस्टमर आपका जो है वो एडवांस पेमेंट ही करेगा और उसके बाद ही ऑर्डर जो है वो प्रोसेस होगा। इसमें आई एम श्योर कि ये तो आपके लिए एक अच्छी बात है और आपकी ही सेफ्टी के लिए है, बिकॉज जब आपका कस्टमर उसकी पेमेंट कर देता है तो उसके बाद वो बिजनेस पॉइंट्स आपके टोटल बिजनेस पॉइंट्स में भी ऐड हो रहे होते हैं और वो सेफ और एक कंफर्म्ड ऑर्डर होता है और वो आपके कस्टमर तक डिलीवर हो रहा होता है। सो फिल वक्त हमारे पास ये ऑप्शन कोरियर के अंदर ही अवेलेबल है, जिसके लिए एडवांस पेमेंट करना जरूरी होती है। ठीक है, वीआईपी बिल्कुल हमारे पास है, वीआईपी स्टोर के साथ शेयर हो सकता है या अदर्स को भी हो सकता है। पर्सनल स्टोर आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जिसको आप लिंक शेयर करेंगे लाजमी नहीं कि वो आपका, ठीक है, सो वो आप लिंक किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ई कैटलॉग का लिंक भी आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। जो लिंक आपका शेयर होगा और वो अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आपके कंसल्टेंट कोड के साथ ही अटैच हो रहा होगा। तो इसके जो लिंक है वो आपने अपने न्यू कस्टमर्स को, अपने न्यू प्रॉस्पेक्ट्स को भेजने होंगे। आपकी डाउनलाइन में जो टीम मेंबर्स हैं जो अपने मजीद ऑर्डर्स गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आपने ये तरीका बताना है ताकि वो भी अपनी सेल को इंक्रीज कर सकें। अब आगे चलते हैं और सेलिंग मेथड की बात करते हैं, क्योंकि हमने सोशलाइजिंग और शेयरिंग की अच्छी खासी बात की है। अब हम चलते हैं जरा उस इम्पॉर्टेंट मेथड के ऊपर जो कि आपकी सेल को कंफर्मेशन देगा या आपकी सेल को बढ़ाएगा। क्योंकि अभी मैं कमेंट्स में ही देख रही थी, तो कुछ ही देर पहले की बात है कि किसी एक शख्स ने कमेंट किया हुआ था कि लोग ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की ना डिमांड नहीं करते, तो हम उनको कैसे सेल करें। ठीक है, सो अगर लोग ओरिफ्लेम प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि आप अपना रोल ठीक से प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, सो डिमांड जो होती है ना वो क्रिएट की जाती है। किसी भी चीज की डिमांड खुद से नहीं होती। जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को ट्राई नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे, तब तक उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं क्रिएट हो रही होती। या बताने वाला उस प्रोडक्ट के बारे में इतनी एक्साइटमेंट, इतनी इंथुसियास्टिक के साथ और इतने रियल फैक्ट के साथ उस प्रोडक्ट के बेनिफिट शेयर कर रहा होता है कि सेकंड पर्सन सुनते ही उन सारी बातों को समझता है और एब्जॉर्ब करता है, तो फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है। सो यस, हम डिमांड क्रिएट करना भी सीखेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ इस वार्म सेल्स मेथड को फॉलो करना है। चाहे आप ओरिफ्लेम के बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ फेस टू फेस बैठे हुए हो या आप ऑनलाइन ही कनेक्ट क्यों ना हो, आपने वार्म सेल्स मेथड को जरूर अप्लाई करना है। 1-to-1 मीटिंग्स तो इसके लिए सबसे ज्यादा मुनासिब है। 1-to-1 मीटिंग्स कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास शाम को आप अपनी किसी पड़ोसन के घर चाय पीने चली गई और चाय पीने के साथ साथ आपने कोई बात शुरू कर दी, या मे बी पॉसिबल आप शाम में फोन के ऊपर किसी के साथ कनेक्ट हो गई, आपने किसी के साथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी कर ली। सो रिपीट करूंगी दोबारा, मैं फ्रेंड का नाम क्यों बार बार लेती हूँ कि ओरिफ्लेम का बिजनेस आपके स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं होता। आप किसी स्ट्रेंजर्स को रेकमेंड करेंगे, वो आपके कहने पे प्रोडक्ट नहीं लेगा। सबसे पहले हमने आपको सोशलाइजिंग के बारे में बताई है। जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको भी हमने अपना फ्रेंड बनाना है, हमने अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करना है और फिर हमने उनको रेकमेंड करना है। अब अगेन बात यहीं पे आ जाती है कि दूसरा बंदा डिमांड ही नहीं कर रहा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए या मुझे ये फेस वॉश लाके दो या मुझे ये हैंड क्रीम लाके दो, तो फिर अब हम उनको प्रोडक्ट कैसे सेल करें, हम उनके साथ प्रोडक्ट की कैसे बात करें। तो ये वार्म सेल्स मेथड आप ही के लिए है। अब इसको जानते हैं। वार्म सेल्स मेथड में W से मुराद है वेलकम, यानी कि हम जिससे भी मिलेंगे, जिसके साथ भी हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं,
तो हम नॉर्मल से थोड़ा हट के, थोड़ा ज्यादा गर्मजोशी के साथ उनको वेलकम करेंगे और हमेशा एक अच्छा पर्सनलाइज्ड कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, और वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पड़ोसन आई और आप उसके साथ बैठे हैं और वो जैसे ही आपके घर में एंटर हुई, अक्सर ऐसा होता है हम सलाम करते हैं या हम उनको जैसे ही देखते हैं तो मे बी पॉसिबल उनके कपड़ों का कलर, ड्रेस का कलर आज आपको उनका बहुत अच्छा लग रहा हो, आज आपको उनके चेहरे पे कोई खास ब्लश नजर आ रहा हो, आज आपको और समटाइम ऐसा नहीं भी होता कि सिर्फ पर्सनल लुकिंग में ही कुछ चीजें होती हैं। कुछ लोगों का हंसना, स्माइल कुछ लोगों की बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों की आदत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो हमने क्या करना होता है, जैसे ही मिलते हैं तो हम सबसे पहले बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलेंगे और दूसरा हम उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपसे मिलके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आपके साथ अपना 1 घंटा या आधा घंटा या शाम चाय का वक्त आपके साथ गुजारती हूँ और मैं बिल्कुल एक्टिव और फ्रेश हो जाती हूँ। या आप उनको कह सकती हैं कि आज तुम्हारे ड्रेस का कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, आज XYZ, ठीक है। सो खवातीन इन चीजों में बहुत ज्यादा तेज भी होती है। सो आई एम श्योर कि हम समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने वेलकम के बाद क्या करना है, हमने उनसे क्वेश्चन पूछना है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, हमने उनसे क्वेश्चन पूछना है, ना कि हमने उनको बताना है कि देखो ये नई प्रोडक्ट आई है मेरी कंपनी की और ये तुम यूज करो, ये तुम लेके देखो, ये ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। वेट, हम प्रोडक्ट को रेकमेंड ही करने आए हैं, हम उसको सेल ही करने आए हैं, लेकिन आराम से, इत्मीनान के साथ डिमांड को पहले हमने क्रिएट करना है। सो डिमांड को क्रिएट करने के लिए पहले हमने उनसे उनका हाल अहवाल तो पूछना है कि कैसा चल रहा है सब कुछ। और अभी हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ उनकी बात करेंगे, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं और कोई अपनी दिन की रुदात बताता है तो क्या होता है कि हमारा रिलेशन ना एक अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। अब अगेन मैं यहाँ पे आपसे वही सवाल करूंगी कि जब हम किसी स्ट्रेंजर से ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं और हम उनसे पूछते हैं अच्छा जी और दिन का और आपका पूरा दिन कैसा गुजरा, तो वो क्या कहता है, बहुत अच्छा गुजरा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी किसी सहेली से पूछेंगी और बताओ पूरा दिन कैसा गुजरा, तो वो आपको पूरी डिटेल बताएगी, यार आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा, आज लाइट इतनी 10 दफा चली गई थी और इतनी गर्मी थी और ये था और वो था। तो क्या होता है कि आप उसके साथ सही मायनों में एक अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ होता है। तो आपका आपके कस्टमर्स के साथ, आपके लोगों के साथ ऐसा ही रिलेशनशिप बना हुआ होना चाहिए जो बिल्कुल एक ट्रस्ट का रिलेशन हो। सो हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि हमने पहले क्वेश्चन करना है, और इस क्वेश्चन इसलिए करना है ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं उनकी लाइफ के बारे में, और मैं कल हम ऑफलाइन सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है एक खातून से करने के लिए, और बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही है, या और बताओ पूरे दिन आज क्या क्या किया। तो बस आपने ये एक सवाल बोलना है और अगले 15 मिनट तक आपकी दोस्त ने बोलना है, क्योंकि इतना कुछ होगा बेचारी के पास बताने के लिए कि मजा ही आ जाएगा। अच्छा, अब आपने उनकी बातों को सुनते हुए बेजारगी का एहसास नहीं करना, नहीं दिलाना उनको बिल्कुल भी, बल्कि उनकी बातों को बहुत ज्यादा गौर से सुनना और समझना है। क्योंकि जब आप उनकी बातों को बहुत ज्यादा गौर से सुनेंगे तो तभी आप उनकी जरूरत को महसूस कर सकेंगे, और जब आप उनकी जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट को रेकमेंड करेंगे तो क्या होगा, आपको आपकी सेल मीट हो जाएगी और नो सुनना नहीं पड़ेगा। हम में से मेजॉरिटी लोगों को नो इसलिए सुनना पड़ता है क्योंकि हम बजाय इसके देखें कि अगले बंदे को जरूरत है नहीं है, नीड है नहीं है, हम सिर्फ अपने माल की तरफ फिक्र करते हैं और स्टॉक को देखते हैं और कहते हैं यार मैंने इतने बीपीस बनाने और मैंने इतनी चीजें बेचनी है।
ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। सो यहाँ हमने ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे उनका बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी के साथ और उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम उनसे क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन उनके डेली लाइफस्टाइल के बारे में हो सकता है, उनकी स्किन रूटीन के बारे में हो सकता है, उनके हेल्थ रूटीन के बारे में हो सकता है और XYZ, ठीक है, ताकि वो आपके साथ थोड़ा सा इंडल्ज हो। उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड करना है। अब वक्त आता है आपका बोलने का, क्योंकि जब वो आपको सुना के कुछ बातें थोड़ा अपना दिल का बोझ भी हल्का कर लेगी और आपको थोड़ा सा फ्रेंड फील करेगी, फिर आप अब जो बात बोलेंगे वो बात उसके दिमाग पे असर भी करेगी और वो बात आप एक्चुअली उसकी नीड के मुताबिक करेंगे। जब आपने उसकी सारी बातें सुनी तो मे बी पॉसिबल, अब चूंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं, मैं मेजॉरिटी घूम फिर के फिर खवातीन पे ही आ जाती हूँ, इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी इस बिजनेस में ज्यादातर खवातीन ही है। सो होता क्या है कि हम जब खवातीन से उनकी रूटीन पूछते हैं तो वो मेजॉरिटी अभी तो यही कह रही होंगी, भाई पूरा दिन घर पे निकल जाता है क्योंकि छुट्टियां हैं बच्चों की, उनको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद किचन में जाना पड़ता है, कभी एक को नाश्ता बना के दो, कभी दूसरे को दो, फिर रेसिपीज नई नई ट्राई करनी है, किचन में कटिंग का काम हो जाता है और सफाई सुथराई XYZ, पूरे दिन का पता ही नहीं चलता। ठीक है, मेजॉरिटी इस वक्त आप में से कितनी खवातीन एग्री कर रही हैं कि हम यही सुनते हैं या हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे ये बताइए कि मैंने अगर आपको ये अपनी स्टोरी सुनाई है तो आपके दिमाग में कौन सी प्रोडक्ट आ रही है मुझे रेकमेंड करने के लिए? क्या रेकमेंड करेंगे मुझे अगर मैं आपको ये कहती हूँ तो कि मेरी ये रूटीन गुजर रही है? सनब्लॉक, अच्छा जी, सनब्लॉक, आलमंड ऑयल, ओके, सनब्लॉक, डे क्रीम, एंटीऑक्सीडेंट सीरम, फेशियल किट, डे क्रीम, सनब्लॉक, गुड क्लेंजर, ओके, शुगर स्क्रब, ऑयल, हैंड क्रीम आ गया जी, हैंड क्रीम, डे क्रीम, एक्सफोलिएटर, सनब्लॉक, ओके ओके जी, ग्रेट जी, थैंक यू सो मच। सो अब कहने का मकसद ये है कि सिर्फ सनब्लॉक ही क्यों, आपके दिमाग में और बहुत सारी चीजें आनी चाहिए एंड दैट्स गुड कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं और इसके अंदर लोगों ने हैंड क्रीम भी कहा है, फुट क्रीम भी कहा है एंड आई एम श्योर जो सब ऑयल कह रहे हैं वो मसाज करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए ही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और क्लेंजर की बात कर रहे हैं, एक्सफोलिएशन की बात कर रहे हैं और सनब्लॉक की बात कर रहे हैं, शुगर स्क्रब और 1 कप कॉफी, ये भी बहुत ही जबरदस्त सजेशन है। अच्छा जी, जबरदस्त, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल, आप लोग बिल्कुल एक तो मुझे ये भी खुशी हो रही है कि बहुत ही हमतन गोश आप लोग सुन रहे हैं सारी की सारी बातें। हम वार्म सेल्स मेथड को अप्लाई कर रहे थे, रिस्पॉन्ड में हमने फिर उनकी जरूरत को समझते हुए आंसर करना है, ठीक है। सो सनब्लॉक से भी आई थिंक ज्यादा जरूरी जो है वो हैंड क्रीम है, क्योंकि खातून ज्यादा से ज्यादा 99% पूरे दिन अपने घर का काम, इवन थप्पड़ भी लगाती है बच्चे को ना तो वो हाथ से लगाती है, तो हम हाथों से बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सजेस्ट करना है, हमने उनको हैंड क्रीम सजेस्ट करना है, क्योंकि खवातीन अपने नेल से भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, क्योंकि बर्तन धो धो के कटिंग कर करके नेल्स भी टूट जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उनको हैंड क्रीम का एहसास दिलाना है कि अच्छा, इसका मतलब तो तुम पूरे दिन काम करती रहती हो, कितना थक जाती होगी, तुम्हारे हाथ, ओ माय गॉड, तुम्हारे तो नेल्स भी टूट गए हैं या XYZ। तो आपने क्या करना है, अब अभी भी प्रोडक्ट नहीं बोलनी कि मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ बस ये हैंड क्रीम यूज कर लो, नो, आपने ऐसे नहीं कहना। आपने उसके बाद उसकी बात को आगे बढ़ाना है, और अगर फॉर एग्जांपल हम सनब्लॉक की बात कर रहे हैं या हैंड क्रीम की बात कर रहे हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट की नीड है। जब आप उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करेंगी, इसके इस्तेमाल के नताइज की बात करेंगी कि हाँ यार ये तुम्हारे लिए मैं समझती हूँ कि हैंड क्रीम तो तुम फिर अभी आजकल हैंड क्रीम कौन सी यूज कर रही हो, तो वो पूछेगी हैंड क्रीम क्यों,
तो आप उनको बताओगी यार पूरे दिन 10 इतने सारे काम तो तुम सब हाथों से कर रही हो, तो तुम्हारे हाथ दिखाओ मुझे, आप उससे हाथ मिलाइएगा या उससे देखिएगा, आपको उसके हाथों की टेक्सचर से पता चल जाएगा, और फिर आप उसको हैंड क्रीम भी बता सकेंगी। और यकीनन एक अच्छा क्लिंजर, जैसे कि अभी कमेंट के अंदर किसी ने अर्बन केयर का बताया 3-in-1, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है 3-in-1। क्यों? क्योंकि इस तरह की खातून जो बता रही है कि इतनी बिजी रूटीन है, तो उसके पास डेफिनेटली अपनी स्किन रूटीन का टाइम नहीं होगा, और अगर आप उसको बताएंगी भी तो वो मे बी फौरन आपकी बात को एग्री नहीं करेगी, बोलेगी मेरे पास अभी 5-5 क्रीमें लगाने का वक्त नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि लोगों को ना स्टार्ट करवाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अर्बन 3D हमारे पास बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि वो क्लेंजर भी है, वो एक्सफोलिएटिंग भी है और वो मास्क भी है। तो आप इसके साथ उसे एक वो प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं कि यार तुम देखो डेली क्लेंजिंग एक्सफोलिएशन शायद पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन मैं तुम्हें एक और आसान तरीका बताती हूँ, ये ले लो, ये 3-in-1 है। तो इस तरह एक हैंड क्रीम के अलावा क्या होगा कि एक आपके कस्टमर के ऑर्डर के अंदर एक अर्बन 3D का क्लेंजर भी ऐड हो गया। फिर आपने उनसे पूछा अच्छा और ये बताओ कि पूरे दिन आजकल गर्मी इतनी ज्यादा होती है, तो कौन सा बॉडी स्प्रे यूज कर रही हो, या अपने आप को फ्रेश करने के लिए रखने के लिए आप क्या यूज कर रही हो। सो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्टिव वैली यूज किया होगा, इसका डिओड्रेंट और बॉडी स्प्रे। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा देर लास्ट करता है, और चूंकि इसमें मोशन लॉक टेक्नोलॉजी है, उसी वजह से हम जब जब हरकत करते हैं तो वो खुशबू उसकी जो होती है वो हमें और ज्यादा फ्रेश रखती है। सो अब आप खुद सोचिए कि एक्टिव वाले इसी तरह के एक्टिव लोगों के लिए जिनका बहुत ज्यादा चलना फिरना घूमना फिरना है, तो आपने उनको फिर एक और प्रोडक्ट की अहमियत बताई, और यूं आपने इसके साथ कुछ स्टोरीज भी ऐड की। स्टोरीज क्या ऐड करनी है, फिर आपने बताना है यार ये जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है ना, यही सेम प्रॉब्लम तुम्हें पता है मेरी वो जो बहन नहीं थी उस बहन के साथ भी थी, उसके भी हाथ ऐसे ही खराब हो गए थे, और उसको मैंने ये एवोकाडो की हैंड क्रीम दी, या मैंने उसको सॉफ्ट केयर्स की हैंड क्रीम दी, उससे न सिर्फ उसके हाथ बल्कि उसके नेल्स भी ट्रीट हो गए, उसके नेल्स भी हार्ड होने शुरू हो गए, और फिर उसके साथ ये हुआ और ये हुआ। तो ये स्टोरीज आपने यहाँ पे लेके आनी है, और बड़े ही एक स्टोरी और एक पर्सनली बातों बातों के अंदर आपने उस प्रोडक्ट की वर्ड बतानी है। एंड देन अगर वो आपसे कहती है अच्छा ठीक है तुम मुझे इतनी सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हो, मुझे बताओ ये मुझे कहाँ से मिलेगी, या मुझे बताओ कि ये यूज कैसे करेंगे। अब मौका आता है कि आप उसको बताएंगी ओके अगर तुम्हें ये प्रोडक्ट लेनी है तो मैं बताती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं ये प्रोडक्ट यहाँ की नहीं है। तो बोलेगी क्या मतलब, तो आप उसको बता सकती हैं यार ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान में बहुत ही खास जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के साथ रजिस्टर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को कंपनी देती है, नॉर्मल शॉप्स के ऊपर नहीं बिक्री होती है। तो थोड़ी सी और वर्थ ब्रांड की क्रिएट करने के लिए और इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए। सो आप वहां पे जब आप उसको ये बात भी बताएंगी कि यार ये प्रोडक्ट इम्पोर्टेड है, ये प्रोडक्ट बाहर की है, ये प्रोडक्ट ऐसी है, एंड देन आप उसको बताओगी, वो बोलेगी हाँ हाँ ठीक है यार मुझे ला दो, मुझे बता दो अच्छी प्रोडक्ट है ना, आप बताएंगे हाँ जी बिल्कुल मैं खुद यूज कर रही हूँ। फिर वो आपसे बोलेगी कि ठीक है मुझे बताओ कितने की है। पैसे नहीं बताने जब तक वो खुद नहीं पूछे। हमारे पेट में दर्द हो रहा होता है कि हम उसको फौरन से पैसे बता दें, और उसको साथ पैसे नहीं बताएं बल्कि उसके साथ 200 का डिस्काउंट भी लगा के दे दें। उसको बोलेंगे भाई तुम सीपी पे ले लो, मेरे बीपीस बन जाएंगे, तुम सीपी पे ले लो। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। एंड देन आपने उसको प्रोडक्ट बताई, अगर आपके पास कैटलॉग है वेल एंड गुड, होनी चाहिए। आपने उसको बोला अच्छा 1 मिनट रुको मैं अपने बैग में देखती हूँ, आई थिंक मेरे पास कैटलॉग होगी, एक्टिंग भी करनी है थोड़ी सी। फिर आपने देखा जी बैग में से आपके पास कैटलॉग निकल के आ गई, फिर आपने उसको प्रोडक्ट दिखा दी कि यार देखो ये प्रोडक्ट है और ये इसकी डिटेल है। तो वो खुद ही प्राइस देखेगी और वो आपसे फिर पूछेगी अच्छा ये इतने रुपए की है, तो आप बोलेंगी हाँ जी बिल्कुल इतने रुपए की है, और ये देखो इसमें कैटलॉग पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी चल रहा होता है। फिर आपने उसको बताना है कि देखो इस महीने ये ले लोगी तो ये डिस्काउंट भी है। सो वो आपके साथ
हैप्पी हो जाएगी और मजीद डिस्काउंट नहीं मांगेगी, क्योंकि आपने तो उसको कैटलॉग पे दिखा दिया। फिर भी आपसे कहती है कि नहीं यार, ये स्टिल मेरे पास जो है ये मैं नहीं समझ पा रही, मुझे और डिस्काउंट चाहिए या मेरा इस वक्त बजट कम है, तो फिर आपने बोलना है उसको ओके चलो मैं तुम्हें एक और बहुत ही अमेजिंग ऑफर देती हूँ और आइडिया देती हूँ। बोलेगी जी क्या? फिर आपने उसको बताना है कि चलो ऐसा करो तुम मेरे साथ वीआईपी कस्टमर बन जाओ। मेरे बहुत सारे वीआईपी कस्टमर्स भी हैं और वो वीआईपी कस्टमर्स, उनके लिए डिलीवरी जो होती है वो अगर 3000 अबव का ऑर्डर होता है तो वो फ्री हो जाती है, उसके अलावा भी सब्सिडाइज रेट के अंदर हमें मिल रही होती है। और इसके साथ साथ तुम्हारे डोर स्टेप के ऊपर तुम खुद अपने हाथों से जब तुम्हें जो प्रोडक्ट चाहिए हो तुम ऑर्डर कर लेना और तुम्हारे घर पे आ जाएगी, और डिस्काउंट तुम्हें हर दफा मिल रहा होगा और कैशबैक भी इंजॉय कर रही होगी। तो क्या होगा, वो क्या बहुत एक्साइटेड हो जाएगी, अच्छा मुझे बताओ कैसे करना है, क्या करना है, अब मुझे बताओ कैसे मैं बनूंगी वीआईपी कस्टमर। और वहीं पे आपने उसको तरीकेकार गाइड किया, आपकी वीआईपी कस्टमर भी बन गई, आपको खुद से कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ना देना पड़ा और डिलीवरी भी उसके पास हो गई। और फ्यूचर में जब भी उसका मूड माइंड बनता है बिजनेस करने के लिए तो वो आपके साथ ही लिंक्ड है, और वो जब उसको रजिस्टर करेगी तो वो डायरेक्टली क्या करेगी, वो आपके साथ ही रजिस्टर हो रही होगी। सो दिस इज द वे, एक मैसेज के इस अंदाज में आपको कोशिश की कि इस वार्म सेल्स मेथड को अप्लाई कर सकूं कि थोड़े से वक्त के अंदर बेहतरीन गुफ्तगू करते हुए कैसे आप लोगों के साथ अपने ऑर्डर्स को जो है वो ग्रिप कर सकते हैं, कैसे उनको ऑर्डर्स के बारे में बता सकते हैं। और यहीं पे एक और एडिशनल ऐड कर दूं कि फॉर एग्जांपल आपने करते हुए उन्हें नोवेज रिकमेंड किया, ठीक है, और नोवेज की रिकमेंडेशन के बाद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगेन वो कहती है कि नहीं यार मेरा बजट नहीं है, तो फिर आपको प्रोडक्ट पता होनी चाहिए। आपने उसको फिर ऑप्टिमल्स के बारे में बताया कि ऑप्टिमल्स में एज रिवाइव भी है, तो मैं आपको इससे थोड़ी सी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट रिकमेंड कर देती हूँ, रिजल्ट्स उसके भी परफॉर्मिंग है, बट नोवेज जो मैंने तुम्हें बताया था उसके रिजल्ट एडवांस परफॉर्मिंग थे, ठीक है। और ये बात भी उसको समझा दी कि भाई अगर ऑप्टिमल एज रिवाइव यूज करोगी तो उसके रिजल्ट्स को नोवेज की तरह मत एक्सपेक्ट करना कि जो मैं बात कर रही थी कि 4 वीक्स में इतना कोलेजन बढ़ता है, 200% प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देती है। इस तरीके से क्या होता है कि आप उसको दूसरी प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ी सी एड ऑन और डिटेल्स बता देती हैं। और उसके अलावा अगर वो कहती है लव नेचर पे हाथ रखती है तो आप उसको बोलेंगी हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप उसको यूज कर सकती हैं, लेकिन इस लव नेचर के यूज से आप फिर एजिंग लाइंस पे काम नहीं होगा क्योंकि ये हमारी बेसिक प्रोडक्ट है, इससे आपकी एजिंग लाइंस का मसला हल नहीं होगा। अब तुमने अपना मसला हल करना है, ये बेसिक नीड पूरी करनी है, फिर उसको समझ आ जाएगी, फिर वो अपनी पॉकेट की अमाउंट को ऑटोमेटिकली बजट को एक्सपेंड करेगी, वो अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाएगी और फिर वो इस बात की अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ऑप्टिमल्स या नोवेज के ही ऑर्डर पे कंफर्म करेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम इन सारी चीजों को लेके चलते हैं। अच्छा, वीआईपी से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आई मस्ट डू कि हम आप लोगों के लिए वीआईपी कस्टमर के ऊपर और भी ज्यादा डिटेल्ड सेशन हम रखते हैं ताकि हम उसमें वीआईपी से ही रिलेटेड और आप लोगों को और डेप्थ के अंदर इसके हवाले से नॉलेज दे सकें। और एक और क्वेश्चन है कि ऑनलाइन स्ट्रेंजर से कैसे बात करना चाहिए। सो आई थिंक अस्मा आप अभी सेशन में ही थी, मैंने स्टार्ट इसी से ही किया था कि ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स के साथ भी आपने पहले उनके साथ जरा गपशप लगानी है। लाजमी नहीं कि आज आपने उसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया और यहाँ पे आपने उसको फ्रेंड ऐड किया और दूसरी तरफ आप उसको इनबॉक्स में मैसेज कर रही हैं और ओरिफ्लेम की कैटलॉग और ई कैटलॉग और बिजनेस ऐप के लिंक्स भेजे जा रही हैं और फिर ये प्रोडक्ट इतने की ले लो, प्रोडक्ट इतने की ले लो। भाई यू आर कंसल्टेंट खुद आके नहीं लोगों को मशवरे दे रहा होता, उससे जब पूछा जाता है तो फिर वो मशवरा देता है, वो अपनी डिमांड क्रिएट करता है। तो आप लोगों ने अपने पर्सनली ग्रूमिंग के साथ अपने आप को प्रोफेशनली भी ग्रूम करेंगे और अपनी डिमांड क्रिएट करें ताकि लोग खुद आपसे आपके पूछें। सो प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी लोग जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है।
ओके अच्छा, विलेज के लोगों को कन्विंस करना यास्मीन बहुत ही ज्यादा आसान है, टू बी ऑनेस्ट, एज कंपेयर टू अर्बन। विलेज के लोगों को कन्विंस करना ज्यादा आसान होता है। जस्ट आपको अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए और कुछ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, कुछ स्टोरीज होनी चाहिए उनको सुनाने के लिए। और मैं ट्रू स्टोरीज की बात कर रही हूँ। और स्टोरीज आपके पास तब होती हैं जब आप खुद या लोगों को ट्राई करवाते हैं। मैंने कल के सेशन में एक और टिप भी दी थी कि जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमारे घर में, खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो हमसे प्रोडक्ट परचेज करें, बट वो नहीं करते। बट वो कहते हैं मुझे तो फ्री में दो, मैं तो फ्री में यूज करूंगी, मैं तो तुम्हारी बहन हूं, मैं तो तुम्हारी खाला हूं। तो ऐसे लोगों के साथ फिर हमने क्या करना है, हमने उनसे भी काम निकलवा लेना है। और उनकी स्किन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर घर में एक बच्चा होता है जिसको प्योर स्किन की जरूरत होती है या टी ट्री की, क्योंकि स्किन दानों से मतलब लाइक एक्नी प्रॉन स्किन होती है या पिंपल्स वाली होती है। तो इस तरह के लोगों को ढूंढ के उनको वो प्रोडक्ट दें। यस, मैं ये कह रही हूँ कि खुद से खरीद के उनको दें और उनको बताएं कि वो इस तरीके से यूज करें। तो अगर आपने प्रोडक्ट की स्टोरीज क्रिएट करनी है तो इनिशियल बेसिस के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको अपने बिजनेस पे करनी चाहिए। आप उनको प्रोडक्ट दें, उनको साथ साथ गाइड करें, उनकी बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स लें और फिर उन पिक्चर्स को एज एन स्टोरी दूसरे लोगों को इंस्पायर करने के लिए यूज करें। बिकॉज इससे आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, इससे आपकी इंपॉर्टेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है जी। सो ग्रेटेस्ट सोर्स, इसके अलावा वेबसाइट भी है। वेबसाइट के ऊपर आप के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी आती है वो आप बॉटम पे जब वेबसाइट के सबसे लास्ट पे जाते हैं तो वहां पे शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। ट्विटर है, ईमेल है, व्हाट्सएप है। जब आप इस पे शेयर करेंगे तो डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक भी शेयर हो जाएगा। इसके अलावा आप न्यूज़लेटर को जरूर शेयर करें, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं जिसको पढ़ के कोई भी बंदा किसी भी वक्त बिजनेस के बारे में सीरियस हो सकता है। ठीक है, और ये भी देख सकता है कि ओरिफ्लेम के साथ लोगों के ड्रीम्स कैसे पूरे हो रहे होते हैं। और उसके अलावा न्यूज़लेटर के अंदर हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें नॉलेज, हेल्थ के हवाले से, ब्यूटी टिप्स के हवाले से भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये 4 हमारे बेसिक वेल नोन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक है। तो आप ने इनके रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी एग्जिस्टेंस जो है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जरूर रखनी है। ठीक है, और इन सब चीजों के अंदर एक पहला रूल याद रखिएगा कि जो भी आप अपना फेसबुक का पेज बनाएं, आप व्हाट्सएप पे अपना कोई ग्रुप का नाम बनाएं या यूट्यूब के ऊपर अपना कोई आप क्रिएट करती हैं चैनल, उसमें ओरिफ्लेम नहीं आना चाहिए। बिकॉज आप ओरिफ्लेम के साथ एफिलिएट हैं, आप ओरिफ्लेम के साथ लिंक्ड हैं, बट यहाँ आपकी पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप अपनी पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे और उसके लिए आप अपनी बिजनेस का कोई भी नाम रख सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने उस पर्सनल ब्रांड को प्रमोट करें, उस पर आप अपना नाम जरूर मेंशन करें और अपनी एक अच्छी कैंडिड पिक्चर जरूर डालें। बिकॉज अगेन स्ट्रेंजर्स से जब हम बात कर रहे हैं तो अगर आपकी भी वही ढकी छुपी भी पिक्चर आएगी या आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे गुलाब का फूल लगा हुआ होगा, तो पहला कॉन्सेप्ट जो माइंड पे जाता है ना वो बेसिकली यही जाता है कि ये फेक प्रोफाइल है। क्योंकि वाकई में लोगों को बहुत धोखे हुए हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, लोगों को बहुत धोखे हुए हैं ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। तो लोग ट्रस्ट नहीं करते, थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, सो हम इस बात को समझते हुए ये बात आपको बता रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लाजमी अप्लाई करें। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिजाब करती हैं, आप हिजाबी पिक्चर लगाइए, आप हिजाब के साथ लगाइए। और अगर वो भी आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप अपने ब्रांड का जो भी नाम पेज रखती हैं उसका एक अच्छा सा कैनवा पे जाके फ्री लोगो डिजाइन कर लें और वही लोगो आपका इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और आपके हर प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ जैसे कि आप अपनी कवर फोटो लगाना चाहें तो फेसबुक पे जैसे फॉर एग्जांपल कवर फोटो में लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं
कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो है ना वो और अच्छी सी उठा के, या कि ऐसे शेल्फ की पिक्चर जिसमें ना 50-100 पिक्चर्स प्रोडक्ट्स की पड़ी हुई हो और वो पिक्चर्स वाली शेल्फ लगा देते हैं। तो देखिए, आप जैसे कि आज सुबह की सेशन में भी आप लोगों ने लर्न किया कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और आपका ब्रांड वो है जैसा आप एक्ट करते हैं, जैसा आप दिखाते हैं। तो अगर आप अपने अच्छे सा आपने लोगो बना लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सदफ ब्यूटी एंड बिजनेस, ठीक है, और वहां पे मैंने जो हूँ प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो है वो मैंने शेल्फ की तरह लगाई हुई है, तो इसका मतलब आपके माइंड में क्या जाएगा? यही जाएगा कि सदफ तो चीजें बेचती है और सदफ ब्यूटी की प्रोडक्ट की चीजें बेचती है, तो मैं तो नहीं बेचती, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं तो रेकमेंड करती हूँ लोगों की नीड के मुताबिक, मैं तो एक लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ, मैं तो लोगों को गाइड करती हूँ कि वो ओरिफ्लेम के बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि फिर आपको लोग उसी तरह से जानते हैं जैसा आप अपने बिजनेस का व्यू देते हैं, ठीक है। सो आपने उस पिक्चर के अलावा बेहतर है कि आप या तो ऐसी पिक्चर लगा लीजिए जिसके अंदर आप कंसल्टेंसी दे रही हैं किसी को, दूर से बैक साइड से पिक्चर ले लीजिए, या ट्रेनिंग देते हुए लेते हुए XYZ, और बहुत सारे आप कवर फोटो भी अच्छी सी क्रिएट कर सकती हैं। सो एग्जीक्यूशन डेफिनेटली इज द की, जो कि आप हमारी S2S की सारे सेशंस के अंदर बाकायदगी से ये बात सुन रहे हैं कि एग्जीक्यूशन अगर आपने नहीं की तो इसका मतलब कि आपने आज का भी जो घंटा 1.5 घंटा लर्न किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एग्जीक्यूट करें। हमने ओरिफ्लेम के सोशल सेलिंग के अंदर इन 3 चीजों को लर्न करना है, शेयर, इनवाइट एंड एंगेज। और हम शेयरिंग के बारे में आज हमने बहुत ज्यादा चीजें जानी है, लेकिन हम मजीद भी इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में जानेंगे कि हमने लोगों का इंटरेस्ट पहले जनरेट करना होता है, ताकि जब प्रोडक्ट हमारी या प्रोडक्ट की वर्थ होगी तो लोग बाय के लिए जब हम लोगों को इनवाइट करेंगे तो वो खरीदेंगे। तो हम शेयरिंग से पहले भी इनवाइट पे चले जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू कर जाते हैं। सो ये पॉइंट हमने शेयरिंग का मिस नहीं करना, और फिर इसके साथ साथ हमने अपने कस्टमर्स को इंगेज भी रखना है, और इसके लिए VIP कस्टमर बेहतरीन टूल है, क्योंकि वो कस्टमर जो कभी आपको ऑर्डर देगा और VIP कस्टमर नहीं बनेगा तो वो 2 महीने बाद कोई और प्रोडक्ट दोबारा आके आपको नहीं देगा, हो सकता है उसे कोई और दे रहा हो, वो वहां चला जाए। तो VIP कस्टमर से ही होगा कि आपका कस्टमर आपके साथ लिंक और सेफ रहेगा, और वो जब भी ऑर्डर करेगा तो उस ऑर्डर से आपको ही बेनिफिट हो रहा होगा। सो एक्टिविटी कंपटीशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कीजिए, और उन एक्टिविटीज की पिक्चर्स जो है वो लाजमी इस लिंक को क्लिक करके अपडेट कीजिए, क्योंकि हमारे पास हर रीजन से 3 अचीवर्स जो हैं वो आने वाले हैं जिनको हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल। आई होप कि आज के सेशन से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और अभी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि आपको सोशलाइजिंग किस तरह से करनी है, और कुछ नई टिप्स मिल गई होंगी ऑर्डर्स गेट करने के लिए। वार्म सेल्स मेथड को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच ऑल। यहाँ भी हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कल भी हमारे ये सेशन रिपीट होगा। आप में से जो भी लोग ने मिस कर दिया वो लाजमी 4 बजे जो है कल इस सेशन के लिए रेडी रहिएगा। लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।